Hare Krishna, good morning and welcome all of you all for our Sunday morning Bhagavad Gita class. So we are in the midst of the 6th chapter. We completed 6.4 and we are going to start with Bhagavad Gita 6.5. So, by the way, what section are we in right now? 6th chapter is basically dealing with Dhyan Yoga. Very nice. And Dhyan Yoga मतलब ध्यान लगाना. And ध्यान लगाना मतलब पहला चीज तो आपको अपना मन को काबू करना. You have to control the mind, then only you can put your mind on anything. Forget about God. Anything in this world, if you want to put your mind as, first you have to control your mind. So Lord has already started speaking in 5.4. He is already giving this. A person is said to be elevated in yoga when having renounced all material desires. All material desires, भौतिक इच्छाओं को जो व्यक्ति छोड़ देता है. And he neither acts for sense gratification, इंद्रिय तृप्ति के लिए. एक तो इंद्रिय इच्छा और मतलब भौतिक इच्छा और इंद्रिय तृप्ति दो अलग चीजें हैं. प्लीज अंडरस्टैंड. और ये दोनों का मिश्रण, a mixture of these two is creating problem in our own life, and that is what is called as adhyatma klesh. Mataji, why don't you come ahead? Today, right now you're a student, so you should come and sit ahead. So the grasping is much better, and you are in front of my eyesight. Please sit. So ये दो चीज का मिश्रण ही है जो हमको आध्यात्मिक क्लेश देता है. आध्यात्मिक क्लेश मतलब कोई तकलीफ नहीं, शारीरिक रूप से आप अच्छे हो, धन से भी संपन्न हो, you are having lot of money, you are having good health, but still you are in problem. Why you are in problem? Because of one is material desires and then sense gratification. Now before we go to this next verse, which is very important, that is 6.5, you just understand what is the difference between material desires and sense gratification. Can anyone tell me the difference between the two? दोनों के बीच का भेद मुझे बताएंगे? It's very important. One should understand this. Then only you can go ahead. I think कोई rocket science question नहीं पूछा है, simple question पूछा है. What is the difference between material desire and sense gratification? Yes. Divine personalities will see. बोलिए बंदे. Difference between two. Difference is always between two, no? हाँ, प्रिया माता जी बताएंगे. Sense gratification is when we don't have the proper things already available. We want to do something more, want to get more. Then it is sense. Why? Or eating pizza. अब dinner का वही था तो क्या करें? No, और है ठूसा जा रहा है, हो नहीं रहा है, फिर भी ठूस रहे हैं, तो फिर then what is the difference between sense gratification and material desires? When we may desire but not fulfill, but when you're fulfilling up to like gratifying our senses, then it is sense gratification. No. But we may desire but not fulfill. No. Kushal Prabhu. According to the sense gratification, we do anything to get the senses satisfied. Desire is just in the mind, but if your action, do any action for satisfying the desire, then the sense gratification will come. You are very close, or rather you are not worded it correctly. You are close. Yeah. Desire, material desire to be the work of mind, thinking, willing, and Yes. This is the difference. Material desire, right from Elon Musk to a beggar. It is, where is it there? Where is it placed? ये जो भौतिक इच्छा जो है, मैं अच्छा मोबाइल यूज करूं, मैं अच्छा गाड़ी यूज करूं, या अच्छा टैब यूज करूं, दिस करूं, वो यूज करूं, वो लंबोर्गिनी गाड़ी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए. ये सब किधर है? All these desires are floating in the mind. Sense gratification is very less. वो तो आप जब उस चीज को
let's say eating. I mean, common example, I mean, it's not the correct example, but the common example is you are eating a rasgulla, you are eating jalebi, you are eating some cake or pastry, whatever it is. Sense gratification has a limitation. But the problem is, material desire don't have any limitations. और ये दो चीज रख के आप शांति कैसे पाओगे? एक तो भोग वस्तु, वन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन. लेट्स से अच्छा रसगुल्ला है, अच्छा जिलेबी है, अच्छा कुछ खाने का है, या कुछ अच्छा पिक्चर देखने के लिए है, या कुछ अच्छा गाना सुनने के लिए है. दैट इज ओके. एक लिमिट तक आप 1 घंटा सुनोगे, 2 घंटा सुनोगे, बाद में 10 बार वही गाना सुनोगे, 50 बार सुनोगे, एंड देन यू विल से इनफ इज इनफ, मुझे और नहीं चाहिए. बट मन की उड़ान जो है ना, उसका कोई टेक ऑफ नहीं है, कोई लैंडिंग नहीं, उड़ते रहते. बिकॉज वन डिजायर लीड्स टू अनदर. I'll be dressed for that marriage with that best, that 5 लाख का साड़ी जो है उसमें मैं ड्रेस करूंगी rather. And then to that I will add my 5 lakh jewelry, and then I'll go to that parlor and do a 1 lakh makeup, and then बनते जा रहा है. It's all in the air. It's nothing on the ground. But मन कहाँ लगा हुआ है? आने वाले लड्डू में, या कभी ना कभी एक दिन मैं उसको प्राप्त करूंगा. At one stage of my life I will achieve it. But with that in the mind, how can you have peace? You cannot get peace unless until one has controlled his mind. That is why in the next shloka Lord is speaking this. First he has given 2 different type of sense gratification. One is gross and one is subtle. The gross one, चलो आपने 4 रसगुल्ला खा लिया, 5 रसगुल्ला खा लिया, एंड दैट्स इट. उसके आगे आप नहीं लोगे. बट द सटल वन इज अनलिमिटेड. I'll go for a foreign tour, I'll go for this, I'll go that, do this, do that. And if you see in the house also, in a day-to-day life, this type of, what do you say, imaginative happiness or imaginative desires is more than actual kitna gross. This is the actual, let's say, let's say आपके घर में वेकेशन का प्लानिंग हो रहा है. एक एग्जाम्पल है. So one may say US, one may say Switzerland, one may say Vietnam, Mauritius, this, that, blah 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 blah. मन के हिसाब से आप सब जगह घूम के आ गए. हाँ, US भी घूम के आ गए, मॉरिशियस भी घूम के आ गए, बाली भी घूम के आए, सब. और जाओगे एक ही जगह. You can't go to all the places at one shot. You can go to one place. But the mind is so tricky. Gumara. So, what is the problem? When one is engaged in this type of mental source of happiness. This is the mental source of happiness. And ये बेगर भी enjoy कर सकते हैं, mind you. बड़ा आनंद में है. एक भिखारी भी, उसके जेब में कुछ पैसे नहीं, गरीब आदमी. पर मनी में सोच रहा मैं राजा हूँ, मैं राजा बन के घूम रहा हूँ, मेरे पीछे कई रानियां हैं, और लोग सलाम कर रहे हैं. मेंटल डिजायर. जो होगा नहीं होगा. यू आर इन इल्यूशनरी हैप्पीनेस, बट दैट इल्यूशनरी हैप्पीनेस इज डिस्ट्रैक्टिंग यू फ्रॉम द गोल ऑफ लाइफ. आपका जीवन का लक्ष्य से आपको भटका. एंड कहते हैं अ पर्सन हु हैज एलिवेटेड इन योगा, ध्यान योग में जो ऊपर उठ चुका है, देन हैविंग रिनाउंस्ड मतलब छोड़. तो याद रखना, मन पे काबू करना एज गुड एज इम्पॉसिबल. इट इज ओनली पॉसिबल बाय रिनाउंसिंग. छोड़ दो उस इच्छा को, छोड़ दो. यस सेज नाउ टुमारो आई विल बिकम अमिताभ बच्चन. सोचने के लिए कोई पैसा लगता नहीं. देयर इज नो लिमिटेशन इन योर थिंकिंग. बट आर यू गोइंग टू बिकम? यू बिकम फाइन. बट वो ही विचार करते रहोगे तो क्या आपका जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप जीवन में आप जो भी लक्ष्य हो, क्या वो प्राप्त कर पाओ? विल यू विल बी अचीविंग दैट? नहीं, मैं अमिताभ बच्चन बनने. कोई भी बोलेगा पढ़ाई कर, नहीं मैं अमिताभ बच्चन बनने वाला हूं. नॉट पॉसिबल. सो दैट इज व्हाई वन हू रिनाउंसेस
all material desires neither acts for sense gratification nor engages in fruitive activities. ये तीन चीज बहुत खतरनाक है। fruitive activities मतलब मैंने ये कर्म किया है, मुझका इसको ये फल मिलना चाहिए। भगवान मैंने 16 सोमवार किया है, मुझे इसके एवज में मुझे ये चाहिए। मैंने 16 शुक्रवार किया है, देन क्या है 16 बुधवार नहीं होता ना, क्या होता है जो भी है, मतलब ऐसा सोमवार और शुक्रवार हो गया, बाद में शनिवार भी होता है, तो शनिवार भी कर लिया मैंने, और मुझे इसके एवज में मुझे ये चाहिए, आई वॉन्ट समथिंग इन रिटर्न। ये सौदेबाजी जिस दिन आप छोड़ोगे ना, भगवान के कभी सौदेबाजी मत करो, वो आप दुकान में जाके करो। आप दुकान में जाके मणिक, इसको बोलते हैं मणिक व्यापार, ये लिया, ये मैंने ये 4 उपवास किया है या 16 उपवास किया है, इसके एवज में मुझे ये चाहिए, देन दैट इज बार्टरिंग। पहले जमाने में था ना, 2 किलो चावल दिया और 2 किलो गेहूं ले लिया, या 2 माप चावल, इट वॉज इवन किलो, इट वॉज माप, 2 माप चावल दिया और 2 माप गेहूं ले लिया, इट वॉज लाइक, या दाल ले लिया, वॉट इट इज, बार्टर सिस्टम। उसी तरह आप भगवान के साथ बार्टर सिस्टम कर सकते हो। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज फ्रूटिटिव एक्शंस। इच्छा कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, इसके लिए मैं कर रहा हूं। एंड सलसर बालाजी व्हेन वी हैड गॉन, वहां पे सब लोग फ्रूटिटिव डिजायर के लिए नारियल बांध रहे हैं, सब लोग नारियल बांध, अच्छी बात है, भगवान की कृपा है, सबका कृपा मनोकामना पूरी होनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं उससे आप आपकी भक्ति को सस्ते में बेच रहे हो। भक्ति को आप सस्ते में बेच रहे हो। क्यों? भौतिक चीजें जो है ना, भौतिक चीजें नाश हो जाती है। all material gains or benefits are temporary, perishable. आपने बड़ा 16 सोमवार किया और आपको एक बढ़िया जॉब मिला, कितना साल के लिए मालूम पड़ा, 5 साल बाद कंपनी बंद हो गई, क्या करोगे? जॉब तो अच्छा मिला पर कंपनी बंद हो गया, या वॉट एवर इट मे बी, आई मीन जस्ट a vague, or you may fall sick, you may die, or maximum till the age of 60 you will work. After the age of 60 even the company will say bye bye. आप you can't go and tell, मैंने बहुत पूजा पाठ किया आपके लिए, कितना मैंने क्या वो तपस्या किया, व्रत रखा, तब आपके जाके आपका कंपनी ने मुझे उठाया, अभी आप रखो और थोड़ा साल, सॉरी, कंपनी पॉलिसी से 60 you have to retire, means you have to retire. So all these benefits are temporary, they are not permanent. So that is why first योगी का क्या लक्षण क्या होता है? What are the first? Come on, tell me. What is the first one? नहीं. What are the 3 things which we learned? A person who is elevated in renounces what? Second, doesn't act for sense gratification. Okay? Act मतलब उस तरह का प्रवृत्ति नहीं रखता है. And third, engage in fruitive. ये तीनों व्यापारी करने वाला चीज है. Engage in fruitive activities is a bartering system, and engaging in sense gratification is cheap and idiotic. इंद्रिय तृप्ति इंद्रियां कभी तृप्त हो ही नहीं सकती हैं. क्यों इंद्रियां तृप्त नहीं हो सकती हैं? Fast, I have to start today's verse. I have not started. No, that is not indriya tripti. हाँ बोलिए. Indriya is only given to gain for gain or Data. Data, yeah. हाँ. So it will continue doing its work. It's nothing satisfaction उसमें आता ही नहीं. हाँ. Then who achieves satisfaction? Mind. So something which is dear to the sense. For example, let's have a basic understanding. I want the young generation to understand this very clearly. Let's say a young boy takes up a cigarette, and he's taking a smoke. Nicely, he's enjoying a cigarette. Who is enjoying? The senses are only transmitting the information to the mind. कि भाई अच्छा किक मिल रहा है, I'm getting a good kick. But who is actually enjoying? The senses are just like, you put a weighing scale. Take a weighing scale. काटा ले लो, आप उसमें 5 किलो रखो तो काटा क्या बताएगा? 5 किलो.
आपने 2 किलो रखा 2 किलो, 100 ग्राम रखा तो 100 ग्राम, काटा कुछ मजा ले रहे, उस पे आपने गुड़ रखा, उसमें आपने लेट्स से नीम का पत्ता रखा, कांटे को क्या फर्क पड़ा? नीम का पत्ता रखा 200 ग्राम है बता दिया, 1 किलो गुड़ है बता दिया. Similarly, your tongue, your eyes, your nose, your ears are just giving you data and providing it to the mind. For example, आपने एक नीम का चीज, कड़वा चीज आपने मुंह में डाला, नीम की गोली डाल दी, वो क्या करेगा? जीवा क्या करेगा? He is only transmitting the information. भैया ये अंदर मत ले, कड़वा है, थूक दे. Then immediately you spit it out. The same jiva, when you put a gulab jamun, hey, it is very tasty and nice. You can put it. It is worthy of putting it in the stomach. Then you gulp it. So it is giving the taste. That enjoyment was given by this thing. No, it was only transmitting the information. जैसे एक रडार क्या होता है? इंफॉर्मेशन दे रहा है. फॉरेन प्लेन आया है, दुश्मन का प्लेन आया है, वो बताता है. इट डजंट शूट डाउन ऑल्सो. जब आपको तय करना है ये प्लेन को शूट डाउन करना है या नहीं तय. रडार आपको इंफॉर्मेशन देता है कि देयर इज वन फॉरेन प्लेन व्हिच इज एंटरिंग आवर टेरिटरी. So similarly, this tongue only gives you data. आंख एक खूबसूरत चीज जा रही है, or let's say a beautiful girl is going or a beautiful boy is going. The girl is enjoying the boy is enjoying the girl. The eyes are giving the data to the mind, and suddenly it sees a truck coming towards you. The eye sees that also and it transmits the information. भैया ट्रक आ रहा है, भाग ले नहीं तुम मरेगा. The truck is coming, run, otherwise you will die. So the eye was the same, whether it was watching a boy, whether it was watching the girl, or whether it was watching the truck. The eye was the same. Then what was special? What was special? The mind was taking enjoyment through the eye when it was seeing the opposite sex. The girl was enjoying when she was seeing the boy was enjoying when she was seeing the girl. Every time this is a story. So it is the mind which was enjoying and why was it enjoying? Now my most important question is, how and why was the mind enjoying? That's the most important part of the question. Let's say a young boy was seeing a young beautiful girl going in front of him. Vice versa, the girl was seeing a young and handsome boy going ahead of her. How could the mind know? वो तो गया अपने रास्ते पे, या रास्ते पे जा रहा है. Then how could the mind enjoy? If you say the sense were not enjoying, the mind is enjoying, then how? क्या मेरा सवाल सही है? समझ में आया? थोड़ा हाई लेवल है, बट समझ में आया क्या? नहीं आया? आया. हाँ, और जवाब भी रेडी है. बोलिए. Because of the mode of nature and past conditioning of the soul. Okay, agreed. Mode of nature is one part. More than that, something very, very logical, very sensible. Hidden desire, true. That is also there. Mataji, please understand. The mind is the main, what is the crook or the culprit which is making us all dance. आप बच्चे को रोज स्कूल के लिए उठाओ, बेटा जाना है, स्कूल जाना है. हाँ मम्मी 5 मिनट 2 मिनट. मगर जिस दिन पिकनिक जाना हो, जिस दिन आउटिंग के लिए हो या कुछ दिन कुछ हो, उस दिन आपको एक बार भी शायद ही बोलना पड़ेगा. The child pops out of the bed as if it is 6 o'clock and gets ready फटाफट. You don't have to tell him anything. Toilet जा, नहाना, कुछ नहीं. Everything like, because the mind is waiting for enjoyment. The problem is the mind is always hunting. In what way can I enjoy more? Mind का काम कुछ और है, कर कुछ और रहा है. Please understand. मैंने 5 gross चीज बताया था. What are the 5 things, gross things by which this body is made? Earth, water, air, fire and ether. Sky and ether. 5 चीज. भूमि, आपो, अनलो, वायु, खम. फिर मन, बुद्धि, अहंकार. ये 3 सटल थिंग है.
तो भगवान ने हमको पंच धातु दिया है शरीर बनाने के लिए, और ये पंच धातु सभी योनि में के लिए एक ही है। आप मछली में देखोगे तो वहां का पानी का जो धातु है वो ज्यादा रहेगा, जो धरती का धातु है वो कम रहेगा। नो दैट्स व्हाई बर्ड्स, इफ यू सी बर्ड्स आर गॉट उनके वायु, एयर इज मोर, दैट्स व्हाई द बोन्स आर हॉलो, द बर्ड्स बोन्स आर हॉलो। व्हाई? द एयर component of air is more and the component of earth is less. अब हाथी में देखो, मोटे इंसान में देखो, the component of earth is more, इसके लिए भारी बैठा रहता है, no fat. So that's how ये पंच धातु से हर कोई चीज इस दुनिया में जो भी जीव बना है वो ऐसे ही बना है. No other way it has been made. Now the most challenging thing is ये पांच चीज तो ग्रॉस है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है. दे आर जस्ट लाइक प्लास्टर ऑन द वॉल. सो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? मन, अहंकार और ये तीन चीजों में मन जो है ना, ये सबसे बड़ा कल्प्रिट है. इसके लिए भगवान ने कभी भी आपसे कोई सोना चांदी हीरा मोती नहीं मांगा है. बिकॉज ही इज द क्रिएटर ऑफ हीरा मोती, ही इज द क्रिएटर ऑफ सोना चांदी. व्हाट डज ही वांट? मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेशय मामेव अथमूर्धम न संशयः. गॉड क्लियरली सेज मयि एव मन आदत्स्व, सिर्फ तेरा मन दे दे मुझे. और योगा टीचर्स यू हाउ टू अप्लाई योर माइंड टू. दैट इज व्हाई रिमेंबर दैट वन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. आप अगर कई लोग अगर आप प्रैक्टिस भी करके देख सकते हैं, फेल हो जाओगे. मैं इंद्रिय तृप्ति भी करते हुए मैं मन को भगवान पे लगाऊं, इम्पॉसिबल. व्हाट इज द ड्रॉबैक? इज शोन इन द नेक्स्ट वर्स. उदारेति आत्मा आत्मानं न आत्मानं अवसाध्यते आत्म एव हि आत्मनो बंधुर आत्म एव हि रिपु आत्मनः. लॉर्ड क्लियरली सेज, रीड द ट्रांसलेशन. One must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well. So one must deliver. उदारेति, उदारेति मतलब अपने आप को लिफ्ट करना चाहिए. उदारेति आत्मा आत्मानम न आत्मानम अवसाध्यते, नीचे नहीं खींचना चाहिए. एक एग्जाम्पल देखो. एक मर्डरर है या एक रेपिस्ट है और एक सेवियर है. रेपिस्ट को भी पता है जो मैं कर रहा हूं गलत है, what I'm doing is wrong, but still why he is going ahead doing the crime? His mind has been his intelligence has been subdued and his mind has convinced the intelligence, no, this is the correct way of enjoying life. This is the correct way of enjoying life. So what he is doing? वो अपना अधोगच्छति कर रहा है. He is pulling himself down. भौतिक दुनिया में भी और मृत्यु के बाद भी. All it is said by acharyas that those rapists who avoid the law, who evade the law, they are born as eunuchs. They are born as eunuchs. This is what acharyas say. I've heard from a couple of acharyas hear this. That this is why they get that punishment, because they have done such a crime, and after doing the crime, by their power, by their money, whatever it is, they have evaded the law. ठीक है, बच गए. अब यहां बच गए, मगर वहां का कानून आपको नहीं छोड़ेगा. So again coming back to this point, one must somehow or the other control the mind, and with the using that same mind. Now हमको पांच पंच धातु का ये शरीर क्यों दिया गया है? ताकि इस शरीर के साथ हम भक्ति कर सकें. यू नीड सम like let's say you go for a contest. Let's say you go for cookery contest. खाना बनाने का शो होता है क्या? मास्टर शेफ. अरे मास्टर शेफ में आप वहां गए और आप बोले मैं आई वांट टू कॉम्पीट, आई वांट टू डू समथिंग. तो आप बोलेंगे आप क्या बनाओगे? आप बोलेंगे मैं आई विल मेक अ केक. वेरी गुड, केक और अ पेस्ट्री. ठीक, बनाओ.
अभी बनाओ बोल दिया तो आपको क्या चाहिए, सामग्री तो चाहिए ना. You need maida, you need that cake oven, I mean basic things. You need the essence or the color or the cocoa, whatever it is. You need to beat it with the milk or cream and then butter or whatever it is. You got to grease that, you got to put it inside the oven. So you need an oven, you need the maida, you need the butter, you need the cake, pancake, everything you require. Without that, can you do the cake? No. तो आपको भक्ति करने के लिए आप क्या हो? आप एक आत्मा हो. What are you? You are a soul. And for a soul to perform devotion without a body, is it possible? तो आपको बॉडी देना तो पड़ेगा भगवान. He has to give you the ingredients required to do bhakti. जैसे आपको ingredients to for making the cake is required, then only you can make a cake or anything any other item. Similarly, आपको भक्ति करने के लिए पहले तो एक शरीर चाहिए, इधर मेल और फीमेल बॉडी, बट यू हैव बीन गिवन है पंच धातु का शरीर दिया. अभी ये शरीर दे दिया, बट उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? माइंड एंड इंटेलिजेंस. ब्रेन नहीं है. ब्रेन इज एन ऑर्गन दैट इज ओनली टू कंट्रोल द बॉडी, बट व्हाट यू नीड इज अ माइंड एंड इंटेलिजेंस एंड पॉलिसी. तीनों चाहिए. ये तीनों के बगैर आपका गाड़ी नहीं चलना है. सो नाउ God has given you a mind and intelligence. And what you are supposed to use this? Intelligence. Mind and intelligence, and all these three you are supposed to use for achieving God. भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको लेना है, बट आप किसके लिए यूज कर रहे हो? Sense. पहले का तीन चीज. Either you are using the intelligence very smartly. मैं ना 16 सोमवार करूंगा और फिर मेरा शादी हो जाएगा, मेरा एडमिशन हो जाएगा, मेरा नौकरी लग जाएगा, व्हाटएवर इट इज, या मुझे बच्चा हो जाएगा, व्हाटएवर इट इज. तो यू आर यूजिंग, वो करने के लिए आपको मन और बुद्धि चाहिए ना. पहला मन चाहिए और बुद्धि चाहिए, तभी आप 16 सोमवार 16 शुक्रवार आप कर सकते हो. सो दैट इज फ्रूटिटिव एक्टिविटीज. सेकेंड, सेंस ग्रेटिफिकेशन. मन बोलता है चलो लेट्स ईट, लेट्स एंजॉय, और लेट्स गो फॉर नाइस बंजी जंपिंग. आजकल पब्लिक उसको, हाउ कैन यू डिफाइन इट एज एंजॉयमेंट? यस प्रभु, हाउ डू यू डिफाइन इट एज एंजॉयमेंट? Being pushed from the top and your leg is like, hey, you're shouting down. You don't come down cool like this. You don't come down zen, you don't come down and you are thrown down. Only the mind can make you convinced that it was happiness. Otherwise you cannot enjoy it. Please, I'm telling you this. सिर्फ मन बोल सकता है कि क्या मजा है ना. Imagine you're pushed down. कितने लोगों का हिप डिसलोकेट हुआ मालूम है आप लोगों को? बैक भी हो जाता है. Back, hip, back, because the whole body weight is coming on the leg. One knot is tied, that's it. And it was thrill. You know, people call it thrill, we call it this, that, whatever it is. And uske paper, you know, they take a signature on the paper, you know that? You are responsible. We are not responsible. They take a signature. कोई भी आप एडवेंचर स्पोर्ट्स में चला जाए ना, पहला आपका सिग्नेचर लेगा, बाद में आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स में डाला जाएगा. हाँ, एज लिमिट छोड़ो, जो भी लिमिट के अंदर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन योर हेड. मर गए तो दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल, यू कांट कैच देम. तो इमेजिन उस चीज को, उस व्हाट यू से दैट टॉर्चर. जस्ट इमेजिन आई पुश यू फ्रॉम द सेकंड फ्लोर. You will land up like that? Definitely not. So it was a torture. But only the mind, under the mode of three natures, so the three modes of nature, under the three modes of nature, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, जो तमोगुण व्यक्ति है वही सोच सकता है it was great enjoyment, great thrill, great fun. Actually I call that you are getting prepared to go to hell. In hell ऐसा बहुत चीज होने वाला है. So अभी से आप mentally you know prepare. हाँ, in earth also I did same things. I did not die. बस पिटा, थोड़ा डर लगा. बस that is what is going to happen in hell also with you all. So all the acharyas are very clearly saying the mind has to be used to elevate one
in the spiritual realm. And the same mind can be used to push yourself down in the lowest of the material planet, that is the hellish condition, because of wrong activities. So mind के साथ पहले दो चीज कौन सा था? One was fruitive activities, that is कर्मकांड वाला जो है वो material desires and sense gratification. ये तीन चीज को अगर कंट्रोल करना है तो आपको मन को ही कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो ये तीन चीज आपके मन से निकलेगा नहीं, आपके मन में घुस के बैठ जाएगा. मन इतना पावरफुल है. यहाँ पे कोई समझो आपके कोई मित्र, सिमरन आप माता जी आपके कोई मित्र आ गए, बाहर से देखा, वो सोचेंगे अरे माता जी तो अंदर क्लासरूम में बैठी, मगर क्या उनको पता है आप स्थूल रूप में यहाँ पे हैं, स्थूल रूप में हैं, मगर सूक्ष्म रूप से कहाँ पे, कहाँ घूम रहे हो? योर माइंड में भी इन यूएस, योर माइंड में भी इन सैंटा क्रूज, योर माइंड में भी समवेयर एल्स. I'm just giving an example. I mean, don't misunderstand. She's here only. But what I'm saying is, what I'm trying to say is, one may be in physically in sitting in front of me, but with the mind, कोई माता जी सोच रहे मैंने घर का ताला मारा कि नहीं, you know, all this type of mind keeps on roaming, and within one split second it can go from here to Borivali. But by traffic it will take 1 hour. But by mind it can go for one split second, you can go there and can come back. So the point what I'm trying to emphasize over here is mind is the most crooked or the most what do you say fugitive thing. आप गपचुप बैठे हो ना, आपके जिभा ने बोला है कि मुझे रसगुल्ला खाना है या नॉनवेज खाना है, शराब पीना है, कुछ नहीं. एवरीथिंग विच इज देयर इज कुकिंग इन द माइंड. सो व्हाट वी हैव टू डू? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन अवर माइंड टू अचीव समथिंग हायर, नॉट समथिंग लोअर. क्योंकि जब तक आप माइंड को कंडीशन नहीं करोगे कि मुझे समथिंग हायर लेना है, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. Mind will stop you from anything which is actually good for you. You go to the market, you see a packet of Lay's, Peppy, you know, all those processed food what we call us. But कभी mind बोलेगा जा थोड़ा गाजर लेके काट के खा ले, काकड़े लेके खा ले, मूली लेके खा ले, डाइटिशियन लिख के देते तब खाओ. But the mind, by default, let me have some nice pastry. That's good. Death by chocolate, na? What? Death by chocolate. है chocolate है ना? Okay, cake है, okay? Red velvet. ऐसा सब नया नया. अरे भाई, death is anyhow waiting for me one day. Why should I die with chocolate? But people are, the mind is always running. How do I get these things? ये इन चीजों को कैसे मैं प्राप्त करूं? आप स्थूल रूप में यहाँ बैठे हो, बट मन ही मन आज सोच लिया आज शाम को तो पानी पूरी खा, आज संडे है, आज पानी पूरी खाऊंगा, आज ये खाऊंगा, वो खाऊंगा. Why? The mind has not been engaged in the service of God. God has not been placed in the center of your life. The day you place God, भगवान को जीवन के बीच में, आपके जीवन में आप भगवान को बिठा दोगे, वो ही आपका लक्ष्य बन जाएगा, तब आप प्राप्त कर सकते. जब तक आप उसको जीवन का लक्ष्य नहीं बनाओगे, मन तो यहां वहां घूमेगा और आपको घुमाएगा. मन तो घूम ही रहे, आपको भी नचाएगा. People go all the way from Western Line to Ghatkopar to eat khawali, pav bhaji and khawali, वहां पे जो भी है. How do they do it? Monday to Saturday बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, फिर भी संडे में कैसे जाते हैं? माइंड. द माइंड सेज बेस्ट पाव भाजी, लेट्स गो एंड एंजॉय दैट.
But even if you go and tell them, sir, why don't you come to the temple, class है, 1 घंटे का क्लास है, आइए, भगवान बुलाएंगे तो आएंगे, कहाँ है? हम कहाँ आएंगे? टाइम ही कहाँ रहता है जाने को? एक दिन आराम करने को मिलता है, एक दिन आराम करने के दिन यहाँ से घाटकोपर जा सकते, यहाँ से वेस्टर्न लाइन से सेंट्रल लाइन या सेंट्रल लाइन से वेस्टर्न लाइन आ सकते हैं एक कुछ खाने के लिए. आई नो पीपल गो फ्रॉम हियर टू महावीर नगर, बोरीवली, टू हैव जैन फूड. जैन, वी डोंट ईट एनीथिंग ऑनियन, पक्का जैन फूड खाते हैं. पर है तो सेंस ग्रेटिफिकेशन. See, mind you, by leaving onion and garlic, you are not doing something great. The propensity for sense gratification still stays inside you. And what you have to control is this propensity for sense gratification. जब तक आप ये जो propensity को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रवृत्ति. जब तक ये भोगने की प्रवृत्ति है, तब तक no possibility of udareti. Udareti is only possible when your pravritti is to achieve something spiritual. And you know the best joke? What is positive in the spiritual, in this material world, opposite is there in the spiritual world. 15वें अध्याय में एक श्लोक आएगा, ऊर्ध्वमूलम अधरमूलम उदरशाखम. This earth is a pivotal reflection of the, like a banyan tree. जैसे आप एक banyan tree क्या बोलते हैं? बरगद का पेड़ जो आप अगर एक सरोवर के किनारे पे अगर कोई बरगद का पेड़ हो और आपने जाके उसके परछाई पे देखा, वो पानी पे जो परछाई उस पे देखा, तो बरगद का पेड़ कैसा दिखेगा आपको? उल्टा दिखेगा. यही परिस्थिति है भौतिक दुनिया में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में. आध्यात्मिक दुनिया में और भौतिक दुनिया में यही अंतर. आध्यात्मिक दुनिया में सब कुछ सीधा है, भौतिक दुनिया में सब कुछ उल्टा है. सो दैट इज व्हाई वी आर हैविंग दिस प्रोपेंसिटी ऑफ डूइंग ऑल थिंग्स. वहां पे नो सेंस ग्रेटिफिकेशन, इसके लिए फुल सेंस ग्रेटिफिकेशन. उल्टा है ना? सो एवरीथिंग इज उल्टा हियर. यू विल बी फोर्स्ड टू डू सेंस ग्रेटिफिकेशन. अच्छा, इफ यू डोंट डू, योर फ्रेंड, योर सर्कल, दे विल टेल यू, हे दारू नहीं पीता है, ये सिगरेट नहीं पीता है, ये नॉनवेज नहीं खाता है, काय के लिए जीता है? एंड यू आल्सो विल, हाँ मैं काय के लिए जीता. मेरे जिंदगी में अवतरण का, वी ऑल कंसिडर आल्सो सर इनकार्नेटेड. मेरे जीवन में अवतार क्यों लिया है मैंने? ये सब भोगने के लिए तो अवतार लिया है मैंने. अरे बाबा, आपने भोगने के लिए अवतार नहीं लिया है, भगवान को प्राप्त करने के लिए अवतार लिया. और अगर भगवान को प्राप्त करना है तो भौतिक दुनिया में जो करना चाहिए या लोग करते हैं वो गलत है. शास्त्र जो कहता है उस प्रमाण से आपको जीना पड़ेगा, और शास्त्र का प्रमाण हमेशा लोगों के सोच के विरुद्ध ही होगा. लव इज देयर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड लस्ट इज देयर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी? आप बोले प्रभु जी ब्यूटी का क्या डेफिनेशन? ब्यूटी इज ब्यूटी. नो, इन मटेरियल वर्ल्ड, इफ यू लुक सेड्यूसिव, इफ यू लुक लस्टी, इसके लिए हम लोग बोलते हैं ना, वर्ड यूज है, शी लुक्स वेरी सेक्सी और ही लुक्स वेरी सेक्सी. व्हाट मीन्स व्हाट? वेयर देयर इज सेक्सुअल एंजॉयमेंट इज इन्वॉल्व्ड, that is what we consider as beauty, whereas in the material, the spiritual world, beauty has a different definition altogether. Here everything is seen with respect to senses. Today what we so called, in the film industry, or in media, or whatever you call it, in showbiz, who is beautiful? Outside, who can look more seductive, who can expose her body and make herself more seductive or attractive, वो व्यक्ति ही बहुत ही जीवन में खूबसूरत है. हालांकि वो नहीं. This old proverb, I think 90% of the young generation may not be knowing. Beauty is not what beauty is. Beauty is what beauty does. आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए. रुक्मिणी
never saw Lord Krishna. उसने कभी जीवन में कृष्ण भगवान को देखा नहीं, सिर्फ उसने नारद मुनि से उन्होंने उनके बारे में सुना। और क्या सुना? उनका कितना सिक्स पैक ऐप है, उनका कितना मसल बिल्टअप है, उनका हाइट कितना है, उनका 36-26 ऐसा मतलब फिगर है। नहीं, श्रुतवान गुणान भुवन सुंदरम। He says in the letter when she writes to Krishna, I have heard about your gunas, your qualities. Qualities should be good. Physically, okay, you cannot be like Kubja. You cannot be like Kubja. And it is said, as per the law of karma, those who do bad activities or bad karmas, their body is deformed or they ugly look they have. So, bottom line, if you see in the larger bracket, if you see, one has to understand that one has to be beautiful. In material world, everything is seducing. Everything is seducing, or no, has a sex appeal. That's what we call as beauty. No, that's not beauty. So everything वहां पे जो है ना, यहाँ पे उल्टा है। इसके लिए आप देखोगे, एक पुराना कहावत है। I told in my, I don't know, second interview of Hare Krishna TV, I told my statement. कुछ चंद सर फिरे हैं उस परवरदिगार के खोज में, बाकी तो सब लगे हैं दाल रोटी के जुगाड़ में। होल वर्ल्ड फ्रॉम अंबानी टू बेगर, एवरीवन किसके लिए भाग रहा है? नहीं, दाल रोटी के ऊपर घी, नहीं, दाल रोटी के ऊपर घी। और वो दोनों घी कैसा होना चाहिए? अच्छे किचन में होना चाहिए। और अच्छा किचन कैसे होना चाहिए? अच्छे घर में होना चाहिए। और अच्छा घर कैसे होना चाहिए? कम से कम नेपेंसी रोड, सी फेसिंग, वर्ली सी फेसिंग, वैसा होना चाहिए। और वो भी कहाँ पे? वहां पे फर्स्ट फ्लोर नहीं होना चाहिए, वहां पे मुझे 25th फ्लोर पे होना चाहिए। और वो घर में आने जाने के लिए मेरे पास एक लैम्बोर्गिनी गाड़ी होनी चाहिए। सो वेयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम दाल रोटी, बट उसी दाल रोटी को आप एक्सपेंड कर दे, जो उसको एक डेकोरेट, नो, यू स्टार्ट डेकोरेटिंग, दैट गोज अनलिमिटेड, इट गोज अनलिमिटेड। So that is why in the material world, भौतिक दुनिया में जो भी व्यक्ति है जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, वो दुनिया के विरुद्ध सोचता है, विरुद्ध करता है। ड्रिंकिंग इज नॉट बैड, स्मोकिंग इज नॉट बैड। लंग्स तो आपका खराब होने वाला है, मेरा थोड़ी खराब होगा। दारू पी पी के आपका लिवर जाएगा, मेरा थोड़ी लिवर जाएगा। सो आई एम नॉट सेइंग दैट एनीथिंग इज बैड, as long as your focus of what you want to achieve, it depends on that. That is what this verse says. Udareti atma atmanam na atmanam avasadyate. आत्मा एवं आत्मनो बंधुर। आत्म जो मन है वही आपका बंधु है, फ्रेंड है। आत्मा एवं रिपु आत्मना, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी। मन के, what do you say, in the flow of the mind, what you do, finally you land up into where? In hell. And hell is not the end, you are again in the repeated cycle of birth and death. अगर कोई, यहां सब लोगों को पता है, कम से कम यहां के लोगों को पता है कि भाई I want to get out of the cycle of birth and death, then why are we not able to get it out immediately? Okay, one is karma. Secondly, abhi tak propensity to enjoy is not gone. Only it has shifted from non-veg to veg, veg to Jain food. No onion, no garlic food. But उसमें भी I can make very nice pasta without onion garlic. Good. I can make very nice pav bhaji. I can make very nice. So what has done? Only the sense gratification ka paradigm has shifted, the focus has shifted from one side to another. That's it. और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वो शिफ्ट हुआ है और कहीं नहीं हुआ। कहाँ? कुछ नहीं छोड़ा है। कोई बाजू का टेबल में बैठ के गटक गटक 10 लीटर दारू पी रहा है,
तो यहाँ बैठ के मोजिटो पीते हैं, फिर क्या है फ्रूट पंच, गटक रहे हो, वो तो दारू गटक रहे हो, क्या रख गया है? Whereas what you see in sadhus and in bhaktas, renounce. They renounce the desire and do tapasya. तपस्या जब तक आप नहीं करोगे, प्रभु जी ये भी क्या कम तपस्या है? दारू छोड़ दिया, नॉनवेज छोड़ दिया, ऑनियन गार्लिक छोड़ दिया। नो, दिस इज नॉट तपस्या। ये तो आपने सिर्फ शिफ्ट किया, आपने सिर्फ एंगल शिफ्ट किया। अगर आपको असली तपस्या करना है तो आपको यू आर देयर इज अ डिफरेंट रेस। मैं बोला ना, भौतिक दुनिया में रेस इज ऑन मटेरियल प्लेटफॉर्म। तेरे पास 2 गाड़ी है, मैं चल 4 लूंगा, तेरे पास 4 है, मैं 5 लूंगा। दिस इज मटेरियल। भौतिक दुनिया में ये रेस चल रही है ना, तेरे पास 4 फ्लैट है, मैं 2 फ्लैट और एक्स्ट्रा खरीदूंगा। So there is a race. Yeah, you got a bungalow, I got a big, I'll buy a bigger bungalow. I'll do this, I'll do that, and unending race is going on. Let's say there are 3 people. You got 2 flats, you got 4 flats, and you got 8 flats. So my first immediate competitor कौन है? The one with 3 flats or 2 flats or 3 flats. पहले आपको मैंने हरा दिया, 3 flats आ गए. I am not worried about the one which is having 8 flats. But first, as soon as I conquer her, who was having 2 or 3 flats, then my focus shifts on the next one. अब उसके बराबर तो होना ही पड़ेगा मुझे उसके बराबर होना है। अब मुझे उसका पास 4 फ्लैट है, तो मेरे को मुझे भी 4 नहीं 5 लेना है। और जिस दिन आपका 5 फ्लैट हो गया या 5 achieve that money level, then the paradigm shifts to 8. That is why Forbes list में अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ फर्क पड़ा? The Forbes list comes, हाँ यार 150 करोड़ ठीक, 1000 5000 करोड़ ओके ठीक है, 5000 करोड़ 10,000 ठीक है, ही नहीं आपने कंपेयर करने के लिए झंझट ही नहीं, छोड़ना। It is just a piece of paper. But the minute your neighbor gets 1 extra car, because a neighbor means is supposed to be at par. If he gets an extra car, मिर्ची लगती है, you get irritated. अरे कल तक अपने साथ एक ही ऑफिस में एक ही साथ घूम रहा था, वो भी मेरे जैसा लाख रुपए सैलरी कमाता था, आज उसके पास और एक गाड़ी आ गई, इमीडिएटली और गेट्स अटैच्ड। Whereas यही आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्टोरी इज उल्टा। व्हाट इज द स्टोरी? उल्टा स्टोरी। There you try to renounce and you say, oh, you are doing 64 mala, I am doing only 32 mala, you are great. कभी ये कहाँ पे कंपटीशन आता है क्या? आप कितना माला कर? 16। अच्छा 16, मेरा तो 8 ही होता है, क्या करूं प्रभु जी, बहुत काम रहता है। और पैसे कमाने के मामले पे, खाने के मामले पे, बाकी चीजों में कंपटीशन नहीं, उसमें पूरा कंपटीशन। बट माला करने में कोई कंपटीशन करता है? नहीं करता। भक्ति करने में करता है? नहीं करेगा। मंदिर में आके पूजा पाठ करने के लिए कंपटीशन करेगा? नहीं करेगा। उन चीजों में गलती से भी कंपटीशन नहीं करेगा, और जिन चीजों में कंपटीशन की जरूरत नहीं है उन चीजों में कंपटीशन। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड द मटेरियल वर्ल्ड। सो हाउ टू मेक द माइंड एज योर फ्रेंड? व्हेन यू आर स्पिरिचुअलाइजिंग द माइंड, and the same mind becomes your enemy when you are using it in the wrong way, in the wrong direction to achieve something material. अरे आपको दिया गया एक, इट्स लाइक आई डोंट नो, पहले क्राफ्ट क्लासेस में ना दे यूज्ड टू हैव द क्ले वर्क होता था। आई डोंट नो अभी है क्या, अभी भी चलता है क्राफ्ट क्लास में? तो वी यूज्ड टू हैव व्हेन वी वर स्मॉल ना, तो एक बच्चे को एक क्ले का एक बॉल दे देंगे एंड दे विल आस्क द चाइल्ड टू यूज हिज इमेजिनेशन। कोई घर बनाएगा, कोई उसमें से रस्सी बनाएगा, कोई उसमें से गाय बनाएगा, गधा घोड़ा, जो भी है, मतलब एज पर द माइंड विच गोस। सिमिलरली गॉड हैज गिवन अस दिस माइंड विच वी आर सपोज टू यूटिलाइज, गॉड इज नॉट सपोज टू यूटिलाइज, एंड इट इज दैट रीजन why our intelligence and mind and intelligence which God has given us, we are not utilizing for spiritual activities. That is why
we incur the law of karma. The law of karma में हम लोग क्यों फंसते हैं? Because हमको rational thinking and focus दिया गया है. फोकस भी दिया गया है. फ्री विल आपको करने तो कब कर्म नहीं करोगे. फ्री विल नहीं देंगे तो आप कर्म नहीं करोगे, और कर्म नहीं करोगे तब तक आप 84 लाख योनियों में से आप बाहर नहीं निकलोगे. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड प्रोवाइडेड यू यूज इट टू गेट आउट ऑफ द साइकिल ऑफ birth and death, but we are repeatedly using it for sense gratification. The earlier three things: material desires, sense gratification and fruitive activities. ये 3 चीजों में हम यूज कर रहे हैं. बहुत अच्छा मन है, बहुत अच्छा दिमाग है, बट दोनों हम गलत चीज के लिए यूज कर रहे हैं. And if you change it for a positive side, what are the challenges you face? Why you are not able to change it? Can anyone tell me the reason for that? What are the challenges? What is the problem? ठीक है, आप सबको पता चल गया. सब लोग अपना मन को उठा के ट्यून करेंगे, है ना? तो क्या है साईं कृष्ण प्रभु, आप क्या करोगे? सोचना पड़ेगा. नहीं, ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे करोगे? चैलेंज क्या है? That is one challenge. That is one of the biggest problem. अपने आप कुछ नहीं होता. अपने आप मतलब वो आप फ्लो में जाओगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी. उसके ज्ञान की प्राप्ति दे दिया ना, ज्ञान तो दे दिया आपको. ज्ञान तो दे दिया आपको. You already knowledge. नहीं, अब मेरे को नहीं करना, मन को भी मेरे को लेके I want to go to the spiritual world. तो आप कैसे करोगे? उसको रोकता कौन? Who's stopping you? अरे मन को तो सुधारना है आपको, उसी वही आपको रोक रहा है. एसोसिएशन, संग जो है ना, वो खरा. अब यही साधु संतों के साथ रहो, भक्तों के साथ रहो. I told you once, I'll tell you once again. एक बार I had gone for 84 कोस यात्रा इन वृंदावन, और वहां पे हम लोग का शेड्यूल मिस हो गया. तो जहां पे लंच था वहां लंच मिला नहीं. पेट में चूहे दौड़ रहे हैं. तो वैसे वैसे हम लोग आई थिंक बिहार वन पहुंचे. तो बिहार वन में साधुओं का, वहाँ पे जो साधु थे उन्होंने खाना वाना खा लिया. तो जो हमारा साथ जो एक आदमी था उसने आके पूछा कुछ खाना मिलेगा क्या? वी वर अबाउट 5-6 पीपल. अनीता गणमर माता जी वाज आल्सो देयर विद मी दैट टाइम. तो पूछा कि हमको कुछ खाना मिलेगा? हाँ जरूर, बचा है, आप प्रसाद जो बचा है आप लोग थोड़ा बहुत खा लेना. मैं जाके बाल्टी खोल के देखा, थोड़ा सा था. बोला कौन खाएगा, कौन छोड़ेगा, लाइक दैट, इतना सा था अंदर. तो बोला ठीक है, जो भी है एक निवाला खा लेते हैं, मतलब कम से कम एसिडिटी तो नहीं होगा. तो पत्तल लिया, हम लोग बैठे. तो बोला हम लोग सर्व करते हैं. एक चम्मच दाल, खिचड़ी था. The minute we had a taste of it, ये तो बहुत ज्यादा है, because it was not ready to go down the throat. Absolutely blanch, total blanch. And उड़द का दाल यूज किया था. There was a sticky. It was very sticky. But urad dal they use because they need proteins, so they use that. That's the best source of protein. And then we realized that somehow we finished that one chammach जो डाला था ना, कैसे भी हम लोग ने गले के नीचे उतार के, before he could come and ask for the next sir, पत्थर भाग गए पत्थर डाल दिया, हाथ धो के बस पूरा पेट भर गया. नहीं और चाहिए है? नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए. And then we went and asked that sadhu, आप लोग why you make such blanch खिचड़ी? बन को खिचड़ी रहा है, कोई 56 भोग तो बन नहीं रहा है, but then why you are making it so blanch? They said this tongue, इसको हमको बिगाड़ना नहीं. एक बार इसको बिगाड़ दिया ना अच्छे चीज खिला के, फिर ये मानेगा नहीं. टंग इन द सेंस द माइंड. द टेस्ट बड्स जो है वो कहीं ना कहीं जाके, नो व्हेन आई एम जस्ट मेंशनिंग अबाउट लेट्स से
anything. I mean, let's say masala dosa. I just say masala dosa. All of you all can immediately recollect the taste because it is there in the mind. कभी ना कभी खाया है तो मसाला डोसा का टेस्ट बैठा है. हाँ, I can smell सांबर also. I can smell that मसाला डोसा का सब्जी और that चटनी. तो the minute ये भी the minute you're I'm saying anything or chocolate cake, anything, मन में तुरंत वो जाता है. क्यों? वो वासना बैठी है दिमाग. Why a man immediately sees a woman or sees a woman sees a man? Why immediately that desire comes? Because that enjoyment is staying there. The what do you say? The remnants of the desire or the enjoyment is there in the mind. इसके लिए आपको कोई चीज बच्चे को बताने की जरूरत नहीं. स्प्राइट पिएगा क्या? That taste of Sprite is there in the mind. So they said हम लोग इसके लिए हम लोग जानबूझ के ऐसा बनाते हैं कि जितना भूख लगे उतना ही खाओगे, उससे ज्यादा नहीं खाओगे और मन में ये विचार उसका मन में विचार आएगा नहीं कि मैं और भोग करूं या और अच्छा चीज खाऊं. अच्छा, एक बार अच्छा खा लिया, अगली बार समझो घर में माँ ने अच्छा खाना बना लिया, आज लेट से अच्छी सब्जी बना ली और अगला दिन वही सब्जी आपका मन के टेस्ट के हिसाब से नहीं बना, तो फिर कैसा रहेगा? मम्मी को डांटोगे ना, अरे क्या मम्मी आज तूने क्या खाना बनाया, कल बढ़िया बनाया था, आज तूने घटिया बनाया. क्यों? द टेस्ट इज लिंगरिंग इन द माइंड. सो दैट लिंगरिंग थिंग हैज टू बी कंट्रोल्ड. सो दैट इज हाउ दिस माइंड हैज टू बी कंट्रोल्ड. विल डिस्कस फर्दर इन द नेक्स्ट श्लोका इज आल्सो टॉकिंग अबाउट द माइंड. 2-3 श्लोका माइंड के ऊपर रहेगा, तो विल डिस्कस फर्दर इन द नेक्स्ट क्लासेस. ओके, टिल देन हरे कृष्णा. एनीबॉडी हैज गॉट एनी डाउट्स, क्वेश्चंस कैन आस्क. किसका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं.